as we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. Our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing deaths from hunger as a result of the lockdown. اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کرونا وائرس کے باعث غریب ممالک کو قرضوں پر ریلیف دیں۔ غریب ممالک کو کورونا کے ساتھ بھوک سے بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کے نام ویڈیو پیغام میں کہا، کورونا وائرس دنیا میں پھیل گیا مگر ترقی پذیر ممالک کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ غریب ممالک کو لوگ ایک طرف کورونا اور دوسری طرف بھوک سے پریشان ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، کورونا کے بارے میں ترقی یافتہ ممالک کا رد عمل مختلف ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے عوام کے لیے بڑے پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کورونا کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاپان اپنے عوام پر $1 ٹریلین خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے مگر ہم صرف $8 ارب خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ صحت پر خرچ کر سکیں۔ سی ایم صاحب باتیں کر رہے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ جی 12 یوسیوں کو 7 لاکھ آدمیوں کو ہم بند کر دیں گے۔ 7 آدمیوں کو تو بند نہیں کر سکتے۔ کرونا سے مرے نہ مرے، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری چکاری اور بےایمانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اور سندھ کے درمیان بلیم گیم شروع۔ فیصل وافدہ کہتے ہیں صوبائی حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں، ان کی نااہلی سے کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ علی زیدی بولے، پیپلز پارٹی 12 سالوں میں ایک اچھا اسپتال نہیں بنا سکی۔ بالائی سندھ میں صرف 2 آئسولیشن سینٹر ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی نے کہا، سمجھ نہیں آتی سندھ میں 6 ارب روپے کا راشن کہاں تقسیم ہوا۔ فیڈرل گورنمنٹ اپنی نااہلی اور جو انہوں نے سیریسنس نہیں دکھائی اس کو چھپانے کے لیے آج کل تنقید کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ پر اور مختلف چیزوں سے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ وفاقی وزراء کو رونا وائرس ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت تنقید سے بچنے کے لیے سندھ حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ نے کہا، پنجاب میں علاقے سیل ہونے کی تعریفیں مگر سندھ میں تنقید کیوں ہوتی ہے؟ مستحقین کی رقوم میں کٹوتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا، 17,000 پیمنٹ پوائنٹ بنا کر کورونا پھیلاؤ کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ کیا لوگوں کو ان کے گھر میں رقوم نہیں پہنچائی جا سکتی؟ رقوم کاٹنے والوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ سندھ حکومت کے بڑے بڑے دعوے مگر عملی کام کچھ نہیں۔ حکومت 20 روز بعد بھی مستحق افراد کو راشن فراہم نہ کر سکی۔ ڈپٹی کمشنر کو 1 ارب سے زائد رقم مل چکی مگر امداد غریبوں تک نہ پہنچی۔ کراچی میں راشن کے منتظر افراد کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ اتحاد ٹاؤن UC 36 کے دفتر کا گھیراؤ۔ کراچی میں ڈیوٹی پر تعینات ٹریفک اہلکاروں کو بھی کھانے کی کم فراہم کرنے کا انکشاف۔ پاکستان میں مزید 2 زندگیاں کورونا وائرس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 88 تک جا پہنچی۔ مزید 140 کیسز کے بعد مجموعی متاثرین کی تعداد 5183 تک جا پہنچی۔ 37 افراد اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے میں مصروف۔ پنجاب میں 2464 مریض، سندھ میں تعداد 1411 تک جا پہنچی۔ KP میں 697، بلوچستان میں 228، گلگت بلتستان میں 216، اسلام آباد میں 119 اور آزاد کشمیر میں 40 مریض زیر علاج۔ پاکستان میں 1028 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ لاہور کے میو اسپتال سے مزید 11 مریض صحتیاب ہونے پر ڈسچارج۔ شکست دینے والوں میں 7 تبلیغی جماعت کے غیر ملکی افراد بھی شامل۔
सखर करंतना से 90% जायरीन सेहतयाब होकर घर जा चुके। करंतना में सिर्फ 15 मरीज ही बाकी रह गए। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया, डीजी खान करंतना से भी 175 मरीज सेहतयाब, सिर्फ 74 जायरीन करंतना में मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी निशाने पर। मुल्तान और कराची में डॉक्टर्स और अमला कोरोना का शिकार होने लगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान 12 डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते खुद मरीज बन गए। कराची के सिविल अस्पताल में 1 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के 4 अरकान मुतासिर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है मुल्तान में 200 डॉक्टर्स आइसोलेट हो चुके हैं। हमारी जिंदगियां खतरे में हैं, मगर अस्पतालों में तिब्बी सामान तक फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुफ्त कोरोना टेस्ट यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क भर में कोरोना की यौमिया टेस्ट बढ़ाने की भी हिदायत। NIH ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मरासला जारी, टेस्टिंग किट्स भी फराहम की जाएंगी। NIH टेस्टिंग से मुतल्लिक आगाही भी देगा। यौमिया टेस्ट 5000 करने का प्लान। कोरोना वायरस का खतरा सर पर, मगर वेंटिलेटर्स की शदीद कमी। कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया तो सूरत हाल पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में 497 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सिर्फ 130 वेंटिलेटर्स मौजूद। KP में सिर्फ 55 वेंटिलेटर्स होने का इंकशाफ। सिंध के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 179 वेंटिलेटर्स फाल। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। इमदादी रकूम के लिए हुजूम से कोरोना फैल सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए जाएं तो कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिल सकती है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना केसेस जाहिर होना परेशान कुन है। पार्टी रहनुमाओं को बगैर नमूदो नुमाइश घरों में सामान पहुंचाने की हिदायत करते हुए कहा हुकूमत ने अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। अपोजिशन जान ले, बयानबाजी अवामी खिदमत नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कोरोना वायरस पर सियासत चमकाने में नाकामी होगी। उस्मान बुज़दार से अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मजदूरों को अदायगी करने वाले सनतकार काबिल तहसीन हैं। उस्मान बुज़दार की मुल्तान के सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। फयाजुल हसन चौहान ने कहा टारगेटेड लॉकडाउन से कोरोना का मुकाबला किया जा रहा है, शहरी घरों तक महदूद रहे। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,11,000 से जायद हलाकतें। 18,05,000 अफराद वायरस से मुतासिर। अमरीका में हलाकतों की तादाद 21,400 से बढ़ गई। इटली में भी 19,468 हलाकतें। स्पेन में 16,972 अफराद जान से गए। फ्रांस 13,832 हलाकतों के साथ चौथे नंबर पर। बरतानिया में भी 10,612 अफराद जान से गए। ईरान में मजीद 117 हलाकतें, तादाद 4,474 तक जा पहुंची। बेल्जियम में 254 हलाकतों के बाद मरने वालों की कुल तादाद 3,600 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस से परेशान पूरी दुनिया के लिए हौसला अफजा खबर। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है वैक्सीन आइंदा हफ्ते मरीजों पर आजमाई जाएगी और सितंबर तक मार्केट में दस्तयाब होगी। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है वैक्सीन मार्केट में आने तक दुनिया का बहुत सारा हिस्सा वायरस से मुतासिर हो चुका होगा। हमें जितना हो सके एहतियात बरतनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं फौरी वैक्सीन दस्तयाब नहीं होगी। बरतानिया में एक और खूनी रोज, 737 नई अमवात के साथ मजमूई हलाकतें, 10,000 से भी तजावुज़। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन मूसी वबा को शिकस्त देने में कामयाब। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर घर मुंतकिल।
लेबर पार्टी का अपने लीडरशिप इलेक्शन नताइज का ऐलान। 7 मुस्लिम बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शैडो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस समेत शैडो वज़रा के ओहदों पर फाइज। तहरीक कश्मीर बरतानिया का जस्टिस फॉर कश्मीर कैंपेन का आगाज। बड़ी तादाद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक के इदारों को खतूत लिखे जा रहे हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मुतालबा किया जाएगा कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें। बदलते मौसम ने घर बैठे कराची वालों के पसीने निकाल दिए। समंदरी हवाएं बंद होने से दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहीं। पीर के रोज से समंदरी हवाएं बहाल और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं वरीशा जुल्फ़िकार। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, कोरोना वायरस से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी मुतासर होने लगा है। वफाकी सिंध हुकूमत कोरोना से लड़ते लड़ते एक दूसरे के आमने सामने है। कोरोना की वैक्सीन भी चंद माह में मार्केट में आने के दावे किए जा रहे हैं। इन सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म का, जिन्होंने बड़े आलमी इदारों से मदद की अपील की है। दुनिया के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे कोरोना वायरस के बायस गरीब ममालिक को कर्जों पर रिलीफ दें। गरीब ममालिक को कोरोना के साथ भूख से भी खतरा है। कोरोना वायरस दुनिया में फैल गया, मगर तरक्की पजीर ममालिक के पास वसाइल की कमी है। गरीब ममालिक में लोग एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भूख से परेशान हैं। Today I'm reaching out to the world community in the context of dealing with this unprecedented challenge posed by the coronavirus. As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact, in the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing deaths from hunger as a result of the lockdown. And the other problem we face in the developing world, there's a huge discrepancy in the resources available to us in the developing world and the resources available to the developed world. While the United States can come up with a relief package, a stimulus package of $2.2 trillion, and while Germany can come up with a relief package, a stimulus package of 1 trillion euros, and Japan $1 trillion, to give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. बरतानिया में एक और खूनी रोज 737 नए अमवात के साथ मजमूई हलाकतें 10,000 से भी बढ़ गईं।
वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन मूसी वबा को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। कोरोना टेस्ट मनफी आया। लंदन में इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। गुलाम हुसैन अमान, ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार क्या है? जी बिल्कुल, आज बरतानिया के अंदर जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से दो अहम खबरें हैं। मैं कहूँगा हौसला अफजा खबर है कि बरतानी वज़ीर आज़म जो बोरिस जॉनसन है वो हस्पताल से जो है वो घर शिफ्ट हो गए, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी तबीयत में जो है वो बेहतरी थी। आज उनका जो है वो टेस्ट लिया गया जिसमें जो है वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं आए, जिसकी वजह से जो है ने घर शिफ्ट कर दिया गया है। ताहम अभी उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस की वो तकरीबन तैयार कर ली गई, आखिरी मराहल में है और अगले हफ्ते जो है उसके बाकायदा टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि आइंदा 3 से 4 महीने के अंदर जो है बाकायदा मार्केट के अंदर जो वो दस्तयाबी होगी। दूसरा आपको ये बताऊं कि रिसर्च स्टडी के अंदर ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता जो बरतानिया है वो आने वाले वक्त में जो है वो यूरोप का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कंट्री होगा कोरोना वायरस से। और आज भी जो है आपने देखा कि 710 अफराद जो है वो इसकी वजह से जो है वो जाँ बहक हुए, जो कई हज़ार जो है उनके नए केसेस भी सामने आए हैं। जी, अब बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम का रुख करते हैं, जहां से खाबर राजा हमारे साथ मौजूद हैं। खाबर, कोरोना वायरस के अलावा ईस्टर की तकरीबात और अशियाए ख़ुरनोश की फराहमी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगरचे लॉकडाउन को तो 3 हफ्ते होने को हैं मगर अब तक इसके कोई पॉजिटिव असरात नज़र नहीं आ रहे। लोगों की बतदरीज अमवात और मुतासरीन की तादाद में इजाफा परेशान कुन है। अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बर्मिंघम और गिरदोनवा में 1000 से ज़ायद अफराद, जिनमें पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों की एक बड़ी तादाद है, इस मौलिक वायरस के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 7 NHS स्टाफ की नर्सें भी शामिल हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों के चिराग रोशन करते करते अपनी ज़िंदगी के चिराग गुल कर गई। इस हवाले से बर्मिंघम और गिरदोनवा को हाई रिस्क एरिया करार दिया गया है क्योंकि रिकवरी की तादाद भी गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ना होने को है। इसके अलावा अगर ईस्टर की तकरीबात के हवाले से बात की जाए तो बर्मिंघम और गिरदोनवा में ईस्टर की तकरीबात भी ना होने के बराबर हैं। लोग घरों में छोटी मोटी तकरीबात को जारी रखे हुए हैं। खाने पीने की अशिया के मराकज़ की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर अब अशियाए ज़रूरिया खाने पीने की अशिया वाफर मिकदार में मौजूद है क्योंकि अब लोगों ने पैनिक बाइंग छोड़ दी है। अगर हिफाजती तदाबीर के हवाले से देखा जाए तो जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। लोगों के दरमियान जो है वो सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा जा रहा है। इसके बरक्स अगर लोकल स्टोर्स पर देखा जाए तो हिफाजती तदाबीर को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग अशियाए खुर्दोनोश के जो लोकल मराकज़ हैं वहाँ पर जो एक दूसरे के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग है वो ना होने के बराबर रखे हुए हैं, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक बात है और कोरोना वायरस के फैलाव का ज़रिया बन सकती है। इस हवाले से स्टोरेज इंतजामिया को खातिर ख्वाह इंतजाम करने की ज़रूरत है। जी, बरतानिया की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी और अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने अपने लीडरशिप इलेक्शन नताइज का ऐलान करते हुए 7 मुस्लिम बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शैडो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस समेत शैडो वुज़रा के ओहदों पर फाइज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात मैनचेस्टर से राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी और अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने अपने लीडरशिप इलेक्शन नताइज का ऐलान करते हुए 7 मुस्लिम बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शैडो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस समेत शैडो वुज़रा के ओहदों पर फाइज कर दिया। इन 7 में से 6 का ताल्लुक पाकिस्तान और 1 का ताल्लुक बांग्लादेश से है। मैनचेस्टर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान पहले पाकिस्तानी और पहले मुसलमान बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्हें शैडो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस के ओहदे पर फाइज किया गया है। जी, हमारे लेबर पार्टी के लीडरशिप इलेक्शन का नतीजा सामने आ चुका है और कीयर स्टार्मर और एंजेला रेनर जो हैं हमारे लीडर और डिप्टी लीडर बने हैं और उन्होंने बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ के अपनी जो पूरी शैडो कैबिनेट है और कैबिनेट के साथ जो शैडो मिनिस्टर होते हैं सबका ऐलान कर दिया है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने 7 मुसलमानों को भी मुख्तलिफ पोजीशंस पे दिया है। मेरे लिए एज द शैडो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बार किसी पाकिस्तानी मुसलमान को ये पोजीशन मिल रही है तो मैं इस पे बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मेहनत करूँगा। लेकिन मुझे खुशी है इसके साथ कि जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको भी अच्छी शैडो पोजीशन मिली हैं और वह शैडो मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे, जिसमें खालिद महमूद साहब हैं, नाज शाह है, हमारे इमरान साहब हैं, हमारे जो रोजीना खान हैं,
यास्मीन कुरैशी हैं, इन सब को शैडो मिनिस्टर की पोजीशन मिली है। तो ये एक मजबूत हमारी आवाज़ है जो इंशाल्लाह हम लेबर पार्टी के अंदर भी बनाएंगे और बरतानिया के अंदर भी, ताकि हम इस मुल्क को सर्व कर सकें, पाकिस्तान और बरतानिया के तल्कात को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। बोल्टन से यास्मीन कुरैशी को शैडो वजीर फॉर डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ब्रेडफोर्ड से नाज शाह को शैडो वजीर फॉर कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट, बर्मिंघम से खालिद महमूद को शैडो वजीर फॉर डिफेंस, ब्रेडफोर्ड से इमरान हुसैन को शैडो वजीर फॉर एम्प्लॉयमेंट राइट्स, लंदन से रोजीना एलन खान को शैडो वजीर फॉर मेंटल हेल्थ और लंदन ही से ट्यूलिप सदीक को शैडो वजीर फॉर एजुकेशन के ओहदे पर फाइज किया गया है। शोभा चाहे कोई भी हो, ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत और काबिलियत से वतन का नाम रोशन करने में हमेशा पेश रहते हैं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी बराए ओवरसीज जुल्फ़े बुखारी ने ईस्टर के मौके पर इस्लामाबाद में क्रिश्चियन कॉलोनीज का दौरा किया और उनमें राशन और अद्वियात तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में दिल खोल कर अतियात दें। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में ईस्टर का त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस मजहबी त्यौहार में पाकिस्तान के मावन खुसूसी बराए ओवरसीज जुल्फी बुखारी ने शिरकत की, अपने मसीही बहन भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने इस्लामाबाद की क्रिश्चियन कॉलोनीज का दौरा किया और इनमें राशन और अद्वियात तकसीम की। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ राशन, मेडिकल सप्लाईज लोग दे रहे हैं और जेनरसली दे रहे हैं। यहाँ एक रूपानी फाउंडेशन नसरू भाई, उनने बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एग्जाम्पल लें। इनका कहना था कि वो मज़ाहिब में हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग की गर्ज से इस त्यौहार में शिरकत कर रहे हैं और वो मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं वो वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में अतियात दें ताकि गुरबा की मदद की जा सके। ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों बहनों की कॉलोनीज़ हैं इस्लामाबाद में। आप देखें कि यहाँ वैसे ही बुरे हालात हैं। पीएम के कोरोना रिलीफ फंड पे आप प्लीज़ अपनी डोनेशंस दें जो है covid.ophrd.gov.pk। जुल्फी बुखारी ने इस्लामाबाद के सेक्टर H9 और G7 में क्रिश्चियन कम्युनिटी में राशन और अद्वियात के 1000 बैग तकसीम किए, जिस पर अहले इलाका ने इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमाओं से कहा कि वो इन्हें कच्ची आबादियों का मुकम्मल डाटा फराहम करें ताकि इनको खुराक और जरूरी अशिया मुहैया की जा सकें। जुल्फी बुखारी ने ये अपील भी की कि तमाम मजहबी ग्रुप्स को इस मौके पर इंसानियत की फलाह के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। मलेशिया से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कोरोना वायरस के फंड में $10,000 अतिया करने वाली मारूफ शख्सियत PTI के मरकजी रहनुमा शहजाद खान और मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत मलिक मुनव्वर इकबाल ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब तक ज़िंदगी है इमरान खान के सिपाही बनकर वतन अजीज़ की बेहतरी के लिए किए गए हर इकदाम पर अपने कायद के साथ खड़े हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद रहमान से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शहजाद खान साहब के साथ मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर उनके रिलीफ फंड में $10,000 भेजने का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलेशिया के मरकज़ी रहनुमा भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा ईमानदार, दयानतदार और मुहब्बे वतन वज़ीर-ए-आज़म दिया है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और वो हमेशा इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। और ये जो कोरोना का प्रॉब्लम आई है, बीमारी इस वक्त पाकिस्तान में आई हुई है पूरी दुनिया की तरह, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के ज़ेर साया हम बहुत जल्द इस बीमारी पर काबू पाएंगे और इस बीमारी से बहुत जल्द पाकिस्तान जो है निकल जाएगा। और दूसरा ये है कि मैं इमरान खान साहब के साथ 96 से हूँ। जब उन्होंने PTI का सबसे पहला ऑफिस जो है ना गड़ी शो में खोला था, तो मेरा भी तल्लुक़ गड़ी शो से ही है। तो उस वक़्त से मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी खान साहब के साथ रहेंगे, उनके सिपाही बन के और उनके जो भी फ़ैसले हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, उनकी हम सपोर्ट करते रहेंगे। और यहाँ भी मलेशिया में भी हम
بہت ساری پاکستانی فیملیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، راشن ان کو پہنچا رہے ہیں. اب تک تقریباً 350-400 کے قریب فیملی ہیں جن کو ہم راشن پہنچا چکے ہیں، اور ان قریب ہم پاکستان میں بھی یہ کام شروع کرنے لگے ہیں راشن پہنچانے کا. اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی ہم سے بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے ہو سکے گا، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کرتے رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ملک منور صاحب موجود ہیں جو عمران خان کے سپاہی بھی ہیں، اور جہلم میں مبارک پور یونین کونسل میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اپنے قائد کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یعنی کہ عمران خان کے اعلان کے بعد یعنی کہ میں نے اپنے علاقے میں اپنی یونین کونسل دولت پور میں اعلان کیا، جو بھی یعنی مستحق لوگ ہیں وہ مجھے فون کریں، میرے بھائی کو میسج کریں، اور ان کی گھر تک راشن پہنچایا جائے گا. اور الحمدللہ میں نے ایسے ہی کیا. عمران خان کے کہنے پر جب میں نے کام شروع کیا تو چودھری فواد صاحب کے زیر سرپرستی میں نے یہ کام شروع کیا، اور میں نے چودھری صاحب کی زیر سرپرستی ان سے مشاورت کے بعد، اور میں نے ہر گاؤں میں اعلان کروا کے اور مستحق جو بہت پریشان لوگ ہیں ان تک راشن ان کے گھر تک پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اسی کام کو کرتے ہوئے ہم ریشہ میں الحمدللہ اسی طریقے سے پاکستان فیملیوں کو دے رہے ہیں، اور جتنے میں پاکستان فیملی ہیں ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں. یہ میں اور میرے بھائی ہیں شہزاد بھائی اور ندیم بھٹی صاحب، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کام کیے. یہ کسی کے لیے ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ کی یعنی کہ ایک نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں دی، اور اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت ایماندار اور مخلص وزیر اعظم دیا ہے، اور اس کی بھائی جان ہم قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو سلامت رکھے.